So, good afternoon, everyone. You are welcome again in SST lecture. So, in this chapter, we will continue with geography. Chapter number 11, disasters, natural and human made. So, in the last video session, you come to know about what are disasters. Okay, so the natural or man made events that causes a large-scale destruction of life and property are known as disasters. So there are two types of disasters, natural disasters and human-made disasters. So what are natural disasters? The disasters which are caused by the forces of nature, for example, wind, water, okay, earthquakes, volcanic eruptions, etc. They are called natural disasters. For example, earthquakes are there, volcanic eruptions are there, then we have cyclones, okay, floods, droughts. So such disasters are called the natural disasters. So here you can say meteorite, hurricane, snowfall, volcanic eruption, tsunami, storm, flooding, rain. Rain can also become a disaster when it start destruction. Very heavy rainfall for continued days can lead to several disasters, destruction of life and property, earthquakes, etc. So here you can see that the disasters are of two types. Here are the natural disasters, and today we are going to study about the man-made disasters. Okay, so man or the activities of man can also lead to a widespread destruction of life and property. So, for example, fire, building collapse, industrial hazards, transport accidents, stampede, riots, terrorist attacks. Now, we will also discuss in this chapter about the nuclear disasters, chemical disasters, and biological disasters. So, let's start today's discussion. So, today's class is about human made disasters. So, So, have you ever been in a situation when your life was in danger because of someone else's negligence or deliberate action to bring about extreme harm or death? Sometimes mishaps and accidents occur, such as a shipwreck, air crash, derailing of a train, or bridge collapse. Such disasters which occur due to human activities are called human made disasters. This leaves us with a few basic questions. Are we prepared enough if we get a warning only a few minutes before a deadly disaster? Are we prepared for a scorching hot summer or a freezing cold winter without electricity? Do we know what to do in case of a deadly chemical release in our neighborhood or in case of a nuclear disaster? So now let us study some incidents of the past to find out the cost people and environment have had to pay for some of the worst human-made disasters that have occurred since industrial revolution. So there was a period in the human history when industrial revolution started. Okay, it started in the Europe and especially in the UK, United Kingdom or Britain you can say. So at that time, at the starting of that revolution, lot of industrial accidents occurred. Oh, so we can include industrial accidents in the human-made disasters. So let's have a look at some of the
notable human disasters or accidents. So first, in the 1940s, over 21,000 tons of toxic industrial waste was buried around the Louvre Canal near Niagara Falls. Residents noticed a strange smell and seepage leaking into their yards. The impact caused people to fall ill. Many women gave birth to babies with birth defects. So this was the incident of 1940s near the Niagara Falls. So Niagara Falls के बारे में आप जानते हो, they are the famous sites for the tourists around the world. तो वहाँ पर लोव कैनाल में इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स की डंपिंग स्टार्ट की वहाँ की गवर्नमेंट ने या इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने. ओके, सो नियर अबाउट 21,000 tons of toxic industrial waste was buried there. सो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वहां से बहुत जो है स्मेल आने लगी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो जो उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट में से जो रेन होती है उसके साथ जो मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर के साथ वो मिक्स होता है. फिर लोग जब उसको पंप आउट करते हैं, यूज करते हैं वाटर को, सो शुरू में उनको पता नहीं चलता कि ये कंटेमिनेटेड है, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल बाय द नेकेड आईज. We have to see it through the microscope if we want to find it out. Okay, so कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहां पर जो विमेंस ने बेबीज को बर्थ किया वो बर्थ डिफेक्ट के साथ. ठीक है, डिफेक्ट क्या होता है, किसी का कोई अंग ना होना बच्चे का, दिखाई ना देना, सुनना ना, बोल नहीं पाना बच्चे का, इस तरह के डिफेक्ट के साथ बच्चे पैदा होने लगे. फिर उनको पता चला दैट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड देन द रिसर्च वाज डन एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वाज प्रॉब्लम created due to the dumping of large scale or large amount of waste products near the houses of the people. So next let's have a second example. The cold foggy winter of 1952 in London took a tragic turn as smoke laced with sulfur dioxide, nitrogen oxide and soot blew from the chimneys of homes and factories. These thick black toxic gases covered the city, darkening the skies and causing death of 12,000 people. सो विंटर्स में जैसे कि दिल्ली के अंदर आपने देखा है वहां पर स्मोग आ जाता है. जब ये क्या कब होता है, जब फॉग और स्मोक एक दूसरे का मिक्स हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एक नई चीज, इसको बोलते हैं स्मोग. ये बड़ी थिक चीज होती है, हम इसको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं. सो 1952 की जब लंदन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट भी लंदन से हुई, सबसे ज़्यादा गंदी सिटीज भी उस समय लंदन में ही थी, इंडस्ट्रियल टाउन्स, और सबसे स्लम्स वहाँ पर डेवलप हो गए थे इसकी वजह से, क्योंकि माइग्रेंट्स बहुत बड़े स्केल के ऊपर वहाँ पर मूव करने लगे थे. लोग गांव से शहरों में, क्योंकि इंडस्ट्री लगी थी, वहाँ पर रहने लगे थे, तो गंदे शहर थे वहाँ के. सो उस समय क्या हुआ कि ड्यू टू एंटी साइक्लोन, एक साइक्लोन होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है, जब हवा एक जगह खड़ी हो जाती है, कुछ दिन हवा वहां खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा फॉग हुई, फॉग में स्मोक, वहां का इंडस्ट्रियल स्मोक मिक्स हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सूट, सूट होती है जो चिमनियों से निकलता है. ठीक है, धुआं साथ में थोड़ी राख, वो ये सारी चीजें मिक्स होके जो बहुत ज्यादा एक थिक लेयर बन गई, और इसने वहां की हवा को कंटेमिनेट कर दिया. लोग चोक होने लगे, सफोकेट कर गए, 12,000 लोग मर गए. ठीक है, इस वजह से. So it was a major accident of that period. So here up you can see a picture. So what is this picture about? The Aral Sea. This is the picture of the Aral Sea now shrunken due to the over use of water in it. तो ड्यू टू द ओवर यूज, यहाँ पर वाटर का ओवर यूज हुआ है, इसके वाटर से छेड़छाड़ की गई है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड
at some time, and now its size have shrunken to 90%. अब ये 10% रह गई है. So the Aral Sea was among the four largest lakes in the world. In the 1960s, the waters from the rivers that fed the Aral Sea was diverted by the Soviet Union to feed irrigation projects, causing this huge lake to shrink by 90%. The salt and sandstorms generated by the shrunken lake devastated plant and animal life. So, किस जो कोई भी सी है, ओशन है या बहुत बड़ी कोई लेक है, खास तौर पर लैंड लॉक लेक्स, उनको फेडअप उनको फेड कौन करता है, उनमें पानी कहाँ से आता है लेक्स में, जहाँ तो बारिश का या फिर नदियां वहां पर पानी लाके छोड़ती हैं कनाल्स. सो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, जो रशियन का एक ब्लॉक था, रशिया का एक, ठीक है, सोवियत स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया इसको बोलते हैं हम, तो सोवियत यूनियन इसको बोल देते हैं शॉर्ट में. सो उन्होंने क्या किया, अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए कुछ नए इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और लेक में पानी डालने वाली जो रिवर्स थी उनके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये लेक सूखती चली गई और इसकी वजह से जो आसपास की एनिमल लाइफ थी, प्लांट लाइफ थी, ह्यूमन लाइफ थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई. नेक्स्ट एग्जांपल, on the night of 2nd December 1984, the Union Carbide pesticide plant in Bhopal, India began to leak and started releasing methyl isocyanide gas and other poisonous toxins into the atmosphere. The toxic gas caused the death of thousands of people and left many more disabled with permanent injuries. The Bhopal disaster is considered as one of the world's worst industrial catastrophes. Over 5 lakh people were exposed and there were up to 15,000 deaths at that time. Okay. So 2nd December 1984 में भोपाल के अंदर एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड बनाती थी वो, वहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइड नाम की एक गैस लीक होना स्टार्ट हो गई. लोग सो रहे थे, रात को हुआ था ये, लोगों को पता ही नहीं चला और उनके खून में ये जाके जब उन्होंने सांस ली तो मिक्स हो गया और सोते सोते बहुत लोगों की मौत हो गई. 15,000 लोगों की डेथ उसी समय हो गई और 20,000 लोग मारे गए बाद में. इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए उसकी वजह से बहुत सारे लोग उस समय जो पैदा हुए वो विद बर्थ इफेक्ट्स के साथ, साइड इफेक्ट्स के साथ पैदा हुए. कम से कम 5 लाख लोगों को इस गैस ने जो है उस समय असर किया. So here you can also see that it is written that more than 20,000 people have died since accident from gas related diseases. On 26th of April 1986, the Chernobyl nuclear power plant in Ukrainian erstwhile USSR जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सोवियत यूनियन, experienced a nuclear disaster which released toxic material 400 times more radioactive than Hiroshima. Okay, on 26th of April 1986, Chernobyl न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन में है, यूक्रेन उस समय यूएसएसआर का एक पार्ट था, वहां पर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया. उस पावर प्लांट में से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो ब्लू अप हो गया, विस्फोट हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और सारा का सारा मटेरियल एक 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है फैल गया. सो रेडियो एक्टिव मटेरियल की संपर्क में, कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है
पर्सन आता है उसके जेनेटिक चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे डिफेक्ट्स होते हैं, आदमी मर जाता है। इससे क्या हुआ, ये जो हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे यूएस ने, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल था ये। Impacts included birth defects, increase in the number of cancer cases, and many other health issues. Okay, so about 1 lakh square kilometers of land was contaminated by the fallout. What is fallout? Fallout means radioactive material, dust. The worst hit regions being Belarus, Ukraine and Russia. ये तीन देशों में ये मटेरियल फैला। Efforts to control the contamination and prevent a greater catastrophe involved over 5 lakh workers and the cost was estimated at 18 billion rubles. So इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ जो contaminated एरिया था उसको क्लियर करने के लिए। So nuclear disasters are the most destructive disasters. Let's have take a look at the another disaster. So in 1991, oil spills during the Gulf War caused massive fires when 600 oil wells were set ablaze. This was the largest oil spill in history. So गल्फ वॉर जब स्टार्ट हुई तो वॉर 600 ऑयल वेल्स को उन लोगों ने जो है जला दिया। इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फायर्स स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ किस चीज़ का, एनिमल लाइफ का, एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट एक्सीडेंट on 24th of June 2003, the Al Mishraq fire from an Iraqi sulfur plant burned for about a month। एक सल्फर प्लांट था इराक के अंदर, उसमें फायर स्टार्ट होगी। Releasing sulfur dioxide into the atmosphere, it became a fatal hazard to the people by causing respiratory problems and also caused acid rain। So इस सल्फर प्लांट में जब आग लगी तो सल्फर डाइऑक्साइड 1 मंथ तक ये आग चलती रही। बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई, वहाँ पर जाके ये रेन के साथ मिक्स होके इसने एक एसिड बना लिया और फिर ये एसिड रेन स्टार्ट हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हुई क्योंकि एयर में भी ये मिक्स हो गई। सो दीज वर सम ऑफ द मैन मेड ह्यूमन और ह्यूमन मेड disasters। Now let's discuss some disasters caused by the fires। So fire is a universal disaster that can occur at any place and at any time. Burning is a chemical reaction which is visible in the form of flames and is accompanied by smoke, heat and light. It spreads quickly and widely when a substance already on fire comes in contact with other inflammable things like पेट्रोल, गैस, कोल, वुड, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो अगर पहले से आग लगी हुई है और उन चीज़ों के कांटेक्ट में आती है तो ये आग बहुत जल्दी फैलती है। देयर आर 4 ways थ्रू विच फायर कैन स्प्रेड। 3 तरीके हैं जिससे फायर स्प्रेड हो सकती है। फर्स्ट, कन्वेक्शन, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर। A fire spread by convection would be a spark being carried from fire to ignite another fire। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये थ्रू एयर ट्रेवल कर जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर कोई जलने वाली चीज़ है वहाँ पर पहुँच जाती है, बड़ी जल्दी ये एक्शन करती है। किसी खुले फील्ड में जब किसान जलाते हैं कोई चीज़ तो देखना, अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी और हवा उस साइड की चल रही होगी तो फायर बहुत तेज़ी से फैलती है। इसी तरह ये
फॉरेस्ट में इसी तरह से फायर फैलती है। Conduction takes place when heat travels through a steel beam from a fire on one side to the other side or any other conductor of heat. ये कंडक्शन में क्या होता है, ये कोई कंडक्टर होता है बीच में, उससे एक साइड में गर्म होता है, दूसरी साइड में ये पहुंच जाती है एज हीट। रेडिएशन, as heat radiates from a bar heater, clothes which are in front of the bar heater may catch fire. तो सर्दियों में जब हम हीटर चलाते हैं अपने आप को रूम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लाल रेड हो जाती हैं वो जो हीटर की रॉड्स होती हैं, तो उनके कांटेक्ट में भी अगर कोई कपड़ा वगैरह आ जाता है तो फायर कैच कर सकता है। नेक्स्ट is direct burning. This happens when the flames from a fire come into direct contact with flammable material. तो डायरेक्ट बर्निंग आपने देखा होगा कि फायर के फ्लेम्स आते हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई भी आप चीज़ रख दोगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। Fires may be natural or human-made. Volcanic eruptions and lightning are natural causes of fire. Human-made causes of fire include electrical short circuits, accidental fire, and kitchen fire. Industrial and chemical fires may be caused by explosions or due to machine failures। ठीक है, तो नेचुरल भी हो सकती है फायर, ह्यूमन मेड भी। फायर इज a very important resource for humans, but when it gets out of control, it can also be one of the most destructive forces. So we should be familiar with the ways to protect ourselves from fires and recover from an unfortunate disaster। So हम फायर से बचने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से या नेचुरल फायर से, in case of fire what precautions should we take and how we can control its damage and what are the steps we can take prior any fire accident. So let's discuss. So places vulnerable to fire. What are those places which are very vulnerable to? कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा vulnerable होती हैं फायर के लिए, जहाँ फायर कभी भी लग सकती है। तो ऐसी प्लेसेस कौन सी हैं? कंजेस्टेड places such as thickly populated settlements, market places etc. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके, ठीक है, उनमें। स्लम एरियाज वेयर dwellings आर hazardous। स्लम एरियाज में जहाँ घर बहुत पास पास होते हैं। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स विदाउट appropriate सेफ्टी नॉर्म्स एंड फैसिलिटीज। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जहाँ पर फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट नहीं हो। फायर सेफ्टी अवेयरनेस एट होम। सो हमें फायर सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए कि घर में कैसे फायर सेफ्टी करनी है। फर्स्ट, कीप important telephone numbers of the nearest fire stations. Okay, be aware of safety rules, define an evacuation route, don't use several devices in one socket, don't allow anyone to smoke inside the house. If fire is caused due to electrical defects, avoid water, you may get electrocuted। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स हैं आपके घर के अंदर, तो पानी की पाइपलाइंस को या टैप्स को मत छुओ, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है एंड यू मे बिकम इलेक्ट्रोक्यूटेड। आपको करंट लग सकता है। लर्न टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जैसे हमारे स्कूल में है, तो वो आपको अपने घर में भी रखना चाहिए और उसको चलाना कैसे, ऑपरेट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। Check the wiring and faulty electrical equipment, gas leakages, etc. Keep inflammable products away from children। जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फायर बहुत जल्दी लग सकती है, जो कैच करते हैं फायर को,
उनको बच्चों से दूर रखो। व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट, हमें तब क्या करना चाहिए जब फायर अगर ब्रोक आउट हो गया, स्टार्ट हो गई है, तब हमें क्या करना चाहिए? सो डोंट पैनिक, बी अलर्ट एंड कॉशियस। Shut off all electrical and gas appliances before leaving the house. Use the closest evacuation route. आग लग गई है, इलेक्ट्रिक स्विचेस को बंद कर दो और भाग जाओ वहां से। Call the fire station immediately. Rush out of the building. Use stairs, not elevators. Be aware of emergency exits if in a public building. Make use of the fire extinguisher and sand. आग बुझाने के लिए सैंड का यूज करो या फायर एक्सटिंग्विशर का। रोल ओवर द ग्राउंड इफ योर क्लॉथ कैच फायर, अगर आपके क्लॉथ्स ने फायर कैच कर लिया तो जमीन पे लेट के रोल ओवर करो। ठीक है, गोल गोल घूमो ताकि वो लेट कर गोल गोल घूमो ताकि वो फायर बुझ जाए। आफ्टर द फायर, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर द फायर? डिटेक्ट व्हाट कॉज द फायर, देखो फायर कैसे लगी, अटेंड टू इंजरीज, अपनी इंजरीज दूसरों की इंजरीज को देखो। Ensure fire safety for future by taking remedial measures to reduce hazards against fire. So फ्यूचर में ऐसा ना हो तो उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करो। जो भी कमियां हैं, सोर्सेज हैं जिससे आग लगी है, उनको दूर करो। इंश्योर फायर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, मिटिगेशन होता है कम करना किसी चीज को या सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। इंश्योर योर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल्स अगेंस्ट फायर डैमेज, हमें इंश्योरेंस जैसे हम व्हीकल्स की करवाते हैं, हमें अपनी प्रॉपर्टी की कीमती चीज़ों की भी फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवानी चाहिए। फायर इवैक्यूएशन रूट शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड सो दैट मूवमेंट इज क्विक, अगर फायर इवैक्यूएशन का कोई आपने रूट रखा है तो उसको उसके रास्ते में कुछ मत रखो, ओपन रखो उसको, ताकि जब जरूरत पड़े आप क्विकली उसमें से पास आउट हो सको। कीप फायर फाइटिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल्स हैंडी, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको जो इंसुलेटेड होते हैं, जहाँ जो फायर कैच नहीं करते, उनसे आप अपने लिए फायर फाइटिंग क्लॉथ्स बना सकते हो। प्लेस इनफ्लेमेबल मटेरियल इन अ सेफ प्लेस एंड अवे फ्रॉम क्राउडेड एरियाज, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को दूर रखो। स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इंडोर्स, घर के अंदर या कहीं भी इंडोर है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, वहाँ पर जो है स्मोकिंग को प्रोहिबिट करना चाहिए, बैन लगना चाहिए उसके ऊपर, सो दैट यू फायर chances of fire can be minimized or reduced. So this was the fire disaster. Now next is nuclear disaster. सो न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होते हैं? हमारे पास कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, सो उनमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनसे भी अगर यूज़ कर देते हैं उनको, तब भी न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इसके लिए जिम्मेदार होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? जब हम न्यूक्लियर एटम्स को, कुछ एटम्स होती हैं कुछ सब्सटेंसेस की, जिनको हम अगर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जहाँ तो फिशन में क्या होता है कि वो एटम्स टूट के दूसरी एटम्स बनती हैं, फ्यूजन में एटम्स मिलके दूसरी एटम्स बनती हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है,
it, and if this energy is not on our control, it can cause destruction. और इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर वेपन्स में यूज करते हैं एज न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्सप्लोड करते हैं देन दे विल कॉज लॉट ऑफ destruction। तो जो हमने चर्नोबिल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा था वो पावर जनरेट करने के लिए था, बट वो एक्सीडेंट होने के कारण उसमें जो है इस तरह से डिस्ट्रक्शन की ह्यूमन मेड डिजास्टर बन गया। So on 6th and 9th of August 1945, the United States bombed the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan within 2 to 4 months. The severe impacts killed 90,000 to 1,66,000 people in Hiroshima and 60,000 to 80,000 in Nagasaki. In both cities, most of the victims were civilians that died due to radiation, flash burns, and other injuries and illness. So nuclear एक्सप्लोजन में क्या होता है, फ्लैश बॉम्ब्स होते हैं जो अचानक से हीट वेव क्रिएट होती है, वो जला के राख कर देती है जो भी उसके सामने आता है, इससे लोग मरते हैं। उसके बाद रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज होता है, उससे लोग मरते हैं। उसके अलावा इंजरी से उसके अलावा जो लोग बच जाते हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, वो उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अभी तक जो उनके आने वाली पीढ़ियां वो बच्चे हैं वो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। सो इट इज अ वेरी डेंजरस disaster or destruction. Damages caused by nuclear disaster, loss of life, large-scale damage to property and structures, long-term contamination of water bodies, radiation causes skin cancer, cell damage and many other illnesses. So इसमें जो मेन हर जगह जो एक एलिमेंट यूज होता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम कैन एंटर रॉक्स एंड रिमेन्स देयर फॉर सेंचुरीज causing a hazard for future generations। तो ये जो यूरेनियम है ये रॉक्स के अंदर भी एंटर कर जाता है, सदियों के लिए वहां रह सकता है आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिव जो है वो निकलती रहेंगी रेज, और ये जनरेशंस को भी फ्यूचर जनरेशंस को भी इफेक्ट करता रहता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन एंटर what bodies of humans and animals and cause great harm and may also influence the future generations. Nuclear explosions contaminate the natural environment with poisonous gases. Smoke, soot, and other waste from fallouts can cause nuclear winters and have a long-term effect on air, water, land, and vegetation. So, nuclear explosions are very dangerous, harmful for all types of life on Earth. Preventive measures इसके लिए क्या होते हैं? When a nuclear disaster breaks out, stay indoors and shut all doors, windows, and other kind of ventilation that allows radioactive material to enter indoors। घर को चारों तरफ से बंद कर दो ताकि उसमें रेडियो एक्टिव रेज ना आ सके, मटेरियल ना आ सके। गवर्नमेंट की बात सुनो, डू नॉट टच एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल विच इज इन द एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द precautions which you can take during a nuclear attack or nuclear explosion। नेक्स्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, व्हाट मिटिगेशन, इसको असर को कम करने के लिए दूर करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज है। न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी बिल्ट फार अवे फ्रॉम इनहेबिटेड एरियाज, ban on the manufacture and use of nuclear bombs at an international scale, treaties like nuclear test ban treaty 1963 non-proliferation treaty must be designed and encouraged। So these are the measures which can be taken to mitigate the nuclear disasters। So in the next session we will learn about the chemical disasters and the biological disasters।